ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم محض راستوں یا سڑکوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس بات کی کھوج لگا رہے ہیں کہ جب قدرت ہمارے سامنے سمندروں، گہری وادیوں یا طوفانوں کی صورت میں بظاہر ناقابل عبور رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں نا، تو انسانی ذہن کیسے لوہے، پتھر اور انجینئرنگ کی مدد سے کشش ثقل کو سیدھا چیلنج کرتا ہے۔ آج ہم دنیا کے ان 15 حیرت انگیز اور مشکل ترین پلوں کو ڈیکوڈ کر رہے ہیں جو صدیوں پر محیط ثقافتوں کو جوڑتے ہیں۔ یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک پل کبھی بھی محض ایک جامد ڈھانچہ نہیں ہوتا۔ مطلب اگر ہم اس کی تہوں میں جائیں تو یہ اس بات کی ایک زندہ اور ٹھوس عکاسی کرتا ہے کہ کوئی معاشرہ جغرافیائی رکاوٹوں کا سامنا کس طرح کرتا ہے، یعنی وہ قدرت سے کیسے نمٹتا ہے۔ بالکل، ہر پل چاہے وہ سمندر کے بیچوں بیچ ہو یا بادلوں سے اوپر، وہ ایک بالکل مختلف داستان سناتا ہے۔ یہ داستان اس بارے میں ہے کہ انسان نے اپنے ارد گرد کے خطرناک ماحول سے لڑنے کے بجائے اس کے ساتھ جینے کے کون سے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں۔ یہ صرف پتھر اور سٹیل کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی ارتقاء کا ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے۔ اور میرے خیال میں اس ارتقائی عمل کا سب سے سنسنی خیز حصہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم ان پلوں کو دیکھتے ہیں جو بکھرے ہوئے سمندروں میں بنائے گئے۔ میرا مطلب ہے جب پانی ہر چیز کو بہا لے جانے پر تلا ہو تو وہاں ایک مستقل ڈھانچہ کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہاں نا، جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں کینیڈا کے کنفیڈریشن برج کی مثال دی۔ یہ 13 کلومیٹر لمبا پل نیو برنزوک اور پرنس ایڈورڈ آئلینڈ کو جوڑتا ہے، لیکن مجھے جو چیز سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ اس کی لمبائی نہیں ہے، بلکہ اس کا وہ طریقہ کار ہے جس سے یہ برفانی طوفانوں اور ان تیرتی ہوئی برف کی چٹانوں کو شکست دیتا ہے۔ یہ کام آخر ہوتا کیسے ہے؟ کوئی بھی پل اتنی بڑی برفانی چٹان کی سیدھی ٹکر کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہیں پر تو انجینئرنگ کا اصل کمال نظر آتا ہے۔ دیکھیں، انہوں نے برف کی طاقت کا مقابلہ اسی کی کمزوری سے کیا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کنفیڈریشن برج کے جو ستون پانی کے اندر ہے نا، انہیں بالکل سیدھا یا ہموار نہیں بنایا گیا، بلکہ پانی کی سطح کے قریب ان پر ایک خاص قسم کی مخروطی یعنی کون شیپ کی ڈھال بنائی گئی ہے۔ صحیح، کون شیپ؟ ہاں، اب ہوتا یہ ہے کہ جب برف کا وہ دیویاکل ٹکڑا لہروں پر آ کر ستون سے ٹکراتا ہے نا، تو وہ سیدھا ٹکرانے کے بجائے اس مخروطی ڈھال کی وجہ سے اوپر کی طرف چڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ میں سمجھا۔ تو برف افقی یا سیدھے دباؤ کو تو برداشت کر لیتی ہے، لیکن جب وہ ڈھلوان پر چڑھ کر مڑتی ہے تو وہ اپنا ہی وزن برداشت نہیں کر پاتی اور بیچ میں سے ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر پل کے دونوں اطراف سے بہہ جاتی ہے۔ کیا بات ہے! یعنی ہم نے برف کی اس تیز رفتاری اور وزن کو اسی کے خلاف استعمال کر لیا۔ ہاں، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے مارشل آرٹس میں ہوتا ہے، مد مقابل کے وزن اور رفتار کو اسی کو گرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بالکل درست تشبیہ دی آپ نے۔ لیکن اچھا، ذرا سوچیں کہ کیا ہو اگر خطرہ برف یا پانی کی سطح کا نہ ہو، بلکہ وہ زمین ہی ہلنے لگ جائے جس پر آپ نے پل تعمیر کیا ہے؟ زلزلے؟ ہاں، زلزلے۔ جاپان کا اکاشی کائیکیو برج ہونشو اور اواجی کے جزائر کو ملاتا ہے۔ یہ تقریباً 3900 میٹر طویل ہے اور اس کے ٹاورز 281 میٹر بلند ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ پل زلزلوں اور انتہائی تباہ کن ٹائفون طوفانوں کے عین مرکز میں واقع ہے۔ اتنی بلندی اور اتنے بڑے خطرے کے ساتھ اس ڈھانچے کو زمین بوس ہونے سے کیا چیز روکے ہوئے ہیں؟ اس کا سیدھا سا اصول ہے، اگر آپ کسی بہت ہی سخت اور نہ جھکنے والی چیز پر دباؤ ڈالیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اکاشی کائیکیو برج کی کامیابی کا راز دراصل اس کی لچک میں پوشیدہ ہے۔ لچک؟ اتنے بڑے لوہے کے ڈھانچے میں لچک؟ جی ہاں، اس پل کے ٹاورز کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ زلزلے کے شدید جھٹکوں اور طوفانی ہواؤں کے دوران یہ ڈھانچہ ہوا کے ساتھ ہلکا سا جھول سکتا ہے۔ اس کے اندر خاص قسم کے ماس ڈیمپرز اور شاک ایبزاربرز نصب ہیں۔ اچھا، جو زلزلے کی لہروں کی توانائی کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح پرتگال کا واسکو ڈے گاما برج بھی کام کرتا ہے۔ وہ جو دریائے ٹیگس پر ہے، 17 کلومیٹر طویل؟ بالکل وہی۔ وہ زلزلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انتہائی گہری بنیادوں پر کھڑا کیا گیا ہے۔
जो जमीन की तह में मौजूद ठोस चट्टानों के साथ जुड़ी हुई हैं, और उसका ऊपरी ढांचा मुकम्मल तौर पर लचकदार है। ये पुल हवा और जिलजिले के दबाव के खिलाफ मुज़ामत नहीं करते, बल्कि ये उस दबाव के साथ हरकत करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। जैसे कोई पुराना और मजबूत दरख्त तूफान में अकड़ने के बजाय हवा के रुख पर झुक जाता है ताकि टूटने से बच सके। हाँ, बाएना यही उसूल है। लेकिन अगर हम कुदरत के साथ हमआहंगी और इंजीनियरिंग के इस अनोखे मिलाप की बात कर ही रहे हैं, तो चीन के अजीम समंदरी पुलों पर बात करना तो लाजमी है। बिल्कुल, उनके बगैर तो ये बहस अधूरी है। होंगजू बे ब्रिज को ही ले लीजिए, 36 किलोमीटर तवील है, लेकिन इसमें एक अजीब बात है। उसे सीधा बनाने के बजाय उसकी साख्त में खास किस्म का खम यानी एस शेप का कर्व दिया गया है। एस शेप। मुझे हमेशा से ये उलझन रही है कि इंजीनियरिंग में तो हम पढ़ते हैं कि 2 पॉइंट्स के दरमियान सबसे छोटा रास्ता एक सीधी लकीर होता है, तो फिर इतने बड़े समंदर में जानबूझकर एक टेढ़ा पुल क्यों बनाया गया? इस पर तो खर्चा भी ज्यादा आया होगा। आपका ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, और आम हालात में सीधा रास्ता ही बेहतर होता है। लेकिन खुले समंदर की हरकियात यानी हाइड्रोडायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। अच्छा, होंगजू बे में समंदरी लहरों का बहाव और उनका दबाव इंतहाई शदीद होता है। अगर वहाँ एक बिल्कुल सीधा पुल बना दिया जाता ना, तो पानी की लहरें एक ही जाविये से मुसलसल उसकी बुनियादों पर दबाव डालती रहती। यानी वो एक तरह से पानी की मार खाता रहता मुसलसल। बिल्कुल, जिससे एक खतरनाक हाइड्रोडायनामिक प्रेशर पैदा होता और पुल गिर सकता था। पुल को खमदार बनाने से होता ये है कि वो पानी के इस बेपनाह दबाव को किसी एक नुक्ते पर मरकूज होने से रोकता है और लहरों की तवानाई को पुल की लंबाई के साथ तकसीम कर देता है। कमाल है, मतलब सिर्फ एक डिजाइन की तब्दीली से पानी की इतनी बड़ी ताकत को कमजोर कर दिया। और चीन की इसी सोच की एक और इंतहाई हैरतअंगेज मिसाल वो हांगकांग ज़ोहाई मकाऊ पुल है। ओ हाँ, वो तो एक शाहकार है। 55 किलोमीटर लंबी तामीर, ये कोई आम पुल थोड़ी है। इसमें तो बाकायदा मसनूई जजीरे बनाए गए हैं और समंदर के अंदर से गुजरने वाली सुरंगें भी शामिल हैं। जी, ताकि समंदरी जहाजों की आमदोरफ्त मुतासिर ना हो। लेकिन मेरे जहन में ये सवाल उभरता है कि एक समंदर के बीचों बीच इतने बड़े मसनूई जजीरे बनाना, ज़ेर-ए-आब सुरंगें खोदना और 55 किलोमीटर तक का रास्ता बनाना, क्या उस सतह का खतरा और इतनी बड़ी सरमायाकारी माशी नुक्ता नज़र से कोई मायना रखती है? मतलब इतना रिस्क लेना ज़रूरी था? अगर हम इसे वसीतर तनाजुर में देखें ना, तो ये महज सफरी सहूलत फराहम करने का कोई रिवायती मंसूबा नहीं है। ये पुल दरअसल मुस्तकबिल के आलमी मुआशी रुझानात को कंट्रोल करने की एक इंतहाई सोची समझी हिकमत अमली है। वो कैसे? ये 55 किलोमीटर का ढांचा 3 अलग अलग और बहुत बड़े शहरों को जोड़कर एक ऐसा मेगा इकोनॉमिक जोन तैयार करता है जहां वक्त और फासले की कोई कैद नहीं रहती। जब आप जोग्राफियाई तौर पर कटे हुए तिजारती मराकज़ को इस तरह आपस में जोड़ते हैं, तो आप सिर्फ सड़कें नहीं बना रहे होते, बल्कि आप एक ऐसा मुआशी इंजन तैयार कर रहे होते हैं जो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन की रफ्तार बदल सकता है। यानी ये एक तरह का माशी हथियार है। बिल्कुल, इस सतह पर खतरा मोल लेना कोई ऑप्शन नहीं होता, बल्कि मुस्तकबिल में अपनी बका की जरूरत होता है। सही, मतलब हम सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ रहे, हम दुनिया के नक्शे पर नए माशी बर्र-ए-आज़म तराश रहे हैं। खैर, पानियों और तूफानों की गहराइयों से निकलकर अब जरा बुलंदियों की तरफ चलते हैं। हाँ, बुलंदियों की बात ही कुछ और है। कशिश सुकल को चैलेंज करने की बात की जाए ना, तो फ्रांस का मेलो वायाडक्ट फौरन जहन में आता है। ये वाकई होश उड़ा देने वाला ढांचा है। यकीनन 343 मीटर की बुलंदी, यानी आप अंदाजा लगाएं कि ये एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा है। दरियाए टॉर्न की वादी में खड़ा ये पुल जब बादलों से ऊपर नजर आता है तो अक्ल मानने से इनकार कर देती है। ऐसा लगता है जैसे हवा में तैर रहा हो। बिल्कुल, लेकिन मेरी उलझन ये है कि वादी के बिल्कुल वस्त में, जहां जमीन इतनी गहरी और नाहमवार है, आप इतनी बुलंदी पर एक पूरी सड़क कैसे तामीर कर सकते हैं? जाहिरी बात है कि आप नीचे से इतनी बड़ी क्रेनें लाकर तो सड़क को ऊपर नहीं लग सकते। ये उस पुल की तामीर का सबसे सहरंगेज पहलू है। मेलो वायाडक्ट को जिस तरह तामीर किया गया, वो रिवायती इंजीनियरिंग से बिल्कुल हटकर था। अच्छा, तो क्या तरीका इस्तेमाल किया उन्होंने? उन्होंने सुतूनों को वादी में खड़ा तो कर दिया, लेकिन सड़क को सुतूनों के ऊपर रखने के लिए वाकई क्रेनों का इस्तेमाल नहीं हुआ।
इसके बजाय उन्होंने वादी के किनारों पर सड़क के बड़े बड़े हिस्से तैयार किए और फिर दे व्हीकल हाइड्रोलिक रैम्स यानी बहुत बड़ी हाइड्रोलिक मशीनों की मदद से उस पूरी सड़क को मिलीमीटर दर मिलीमीटर आगे की तरफ धकेला। एक मिनट, आप कह रही हैं कि उन्होंने पूरी सड़क को हवा में धकेला? जी हाँ, तसव्वुर करें, हजारों टन वजनी स्टील की सड़क को हवा में मुअल्लक करते हुए एक सुतून से दूसरे सुतून तक धकेला गया। ये अमल इतनी दुरुस्तगी का मुतकाजी था कि 1 इंच की गलती भी पूरे ढांचे को तबाह कर सकती थी। सड़क को धकेलने का ये अमल इंतहाई सुस्त और नापातुला था। ये सोचकर ही खौफ आता है यार। मेरा मतलब है, एक भारी भरकम हाईवे को खाई के किनारों से हवा में धकेलना और ये उम्मीद करना कि वो अगले सुतून पर बिल्कुल दुरुस्त जाविये पर जाकर टिकेगी, ये वाकई मौजिज़ा है। बिल्कुल जदीद इंजीनियरिंग का मौजिज़ा। लेकिन अगर हम इंजीनियरिंग के इस जदीद दौर से थोड़ा पीछे जाएं, तो तारीख में एक वक्त ऐसा भी था जब हमारे पास ये हाइड्रोलिक मशीनें नहीं थीं। 1883 में तामीर होने वाले अमेरिका के ब्रुकलिन ब्रिज को देखें। क्लासिक। उसकी तामीर उस दौर का एक बहुत बड़ा संगे मील थी। पत्थर के वो देहव्याकुल भारी भरकम टॉवर्स और उनके साथ स्टील की तारों का जाल। ये वो दौर था जब पहली बार पुलों की तामीर में स्टील की तारों का इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पर किया गया। ब्रुकलिन ब्रिज अपने दौर की इंजीनियरिंग की वाकई एक बहुत बड़ी जुज़ थी और इसी तारीखी विरसे की एक और शानदार मिसाल 1894 में मुकम्मल होने वाला बरतानिया का टावर ब्रिज है। लंदन का मशहूर टावर ब्रिज। बिल्कुल, उसके 2 गॉथिक तर्ज के पत्थर के टावर्स कोरोने वस्ता के किसी पुरस्कार किले का मंजर पेश करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो मैकेनिज्म, जिसे बैस्क्यूल मैकेनिज्म कहते हैं, छुपा हुआ है, वो कमाल है। यानी वो हिस्सा जो खुल जाता है? ये बज़ाहिर एक जामिद और भारी पत्थर का पुल नजर आता है, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा बहरी जहाज करीब आता है ना, तो उसका दरमियानी हिस्सा बिल्कुल किसी जदीद मशीन की तरह खुलकर रास्ता दे देता है। 19वीं सदी में ये बनाना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और जब हम तारीख और जिद्दत की बात कर रहे हैं, तो 1937 में बनने वाले सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज का जिक्र नागुज़ीर है। यहाँ मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त हकीकत शेयर करना चाहता हूँ। हम सब उसके इस मशहूर नारंगी माइल सुर्ख यानी इंटरनेशनल ऑरेंज रंग से वाकिफ हैं। जी, वो रंग तो उसकी पहचान है। लेकिन ये रंग महज उससे खूबसूरत दिखाने के लिए नहीं चुना गया था। अच्छा? हाँ, सैन फ्रांसिस्को की इस खलीज में सर्दियों के दौरान एक इंतहाई गहरी सफ़ेद और सुरमई धुंध छा जाती है। अगर ये पुल स्टील के रिवायती सुरमई या काले रंग का होता ना, तो जहाज़ों के कप्तानों को ये धुंध में बिल्कुल नजर नहीं आता और हादसात का बहुत ज्यादा खतरा रहता। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल वजह थी। बिल्कुल, खूबसूरती से ज्यादा वो रंग इसलिए इस्तेमाल हुआ ताकि वो उस धुंध में वाज़े तौर पर चमकता रहे। लेकिन अच्छा, यहाँ मैं एक बहस छेड़ना चाहता हूँ। जी बताएं। जब मैं ब्रुकलिन ब्रिज या टावर ब्रिज को देखता हूँ, तो उनमें पत्थर का जो एक रोबदार और भारी फने तामीर है ना, वो ऐसा महसूस होता है जैसे इंसान कुदरत के सामने सीना तान कर खड़ा है और कह रहा है कि हमने इस दरिया को फतह कर लिया है। उनकी शान और शौकत ही उनका वजन है। सही। तो क्या हमने जदीद दौर के मेरोवाया वायडक्ट जैसे हल्के, पतले और सिर्फ ज़रूरत की हद तक इस्तेमाल होने वाले कम से कम मवाद वाले डिज़ाइंस में वो तारीखी और गालिब आ जाने वाला हुस्न खो नहीं दिया? क्या हम आजकल के पुलों को ज़रूरत से ज़्यादा नाजुक नहीं बना रहे? ये एक इंतहाई अहम और गहरा नुक्ता है, लेकिन इसे एक और जाविये से देखें। माजी में फ़न तामीर वाकई ताकत और गलबे के इजहार का जरिया था। इंसान पत्थर के देवायकल ढांचे खड़े करके फितरत को अपनी मौजूदगी और एक तरह से अपनी हुक्मरानी का पैगाम देता था। जैसे कि हम यहाँ मौजूद हैं और हम ताकतवर हैं। बिल्कुल, लेकिन जदीद इंजीनियरिंग का फ़लसफ़ा अब बदल चुका है। आज कामयाबी उस बात में नहीं है कि आप कुदरत को कितना दबाते हैं, बल्कि इसमें है कि आप उसके साथ कितनी हम आहंगी पैदा करते हैं। हम आहंगी? जी, मेलो वायाडक्ट का डिज़ाइन जानबूझकर ऐसा रखा गया है कि वो वादी पर मुसल्लत न हो। उसके बसरी तौर पर हल्के सुतून इस बात की अलामत है कि इंसान अब कुदरती माहौल का एहतराम कर रहा है। वो मंजर को छुपाने के बजाय उस मंजर का हिस्सा बनना चाहता है। ये हल्कापन नज़ाकत नहीं है, दरअसल आज के इंसान का अपनी साख्त और टेक्नोलॉजी पर मुकम्मल एतमाद है। क्या बात है, ये बहुत खूबसूरत बात कही आपने। गलबा पाने से लेकर हम आहंगी तक का सफर।
लेकिन इंजीनियरिंग की ये इर्तिकाई मंजिल सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। जब इंसान ने पानी, हवा और कशिश सकल को काबू करना सीख लिया ना, तो फिर उसने उन पुलों को अपनी सकाफत का कैनवस बना लिया। तब एक पुल सिर्फ रास्ता नहीं रहता, बल्कि वो इस कौम की रूह और उसकी शनाख्त का हिस्सा बन जाता है। वियतनाम के ड्रैगन ब्रिज की ही मिसाल ले लें। वो तो बहुत ही शानदार है। हाँ, दरियाए हान पर बने उस पुल का ढांचा वाकई एक सुनहरी ड्रैगन की शक्ल में डिजाइन किया गया है। और इस ड्रैगन ब्रिज की खास बात सिर्फ उसकी शक्ल नहीं है। एशियाई सकाफत में ड्रैगन ताकत, खुशहाली और पानी के बहाव की अलामत माना जाता है। और इस पुल को इस कदर जिंदा दिल बनाया गया है कि वीकेंड्स पर ये ड्रैगन बाकायदा अपने मुंह से आग और पानी के फव्वारे उगलता है। वाकई, मतलब बाकायदा आग और पानी? बिल्कुल। ये एक ऐसा मौका होता है जब ट्रैफिक रुक जाती है और लोग इसे देखने के लिए जमा हो जाते हैं। इस तरह वो पुल सफर का जरिया बनने के बजाय खुद एक मंजिल और एक त्योहार बन जाता है। ये तो कमाल का आइडिया है। सकाफती फन तामीर का ऐसा ही एक और हैरान अंगेज नमूना ब्राजील के शहर ब्राजीलिया की झील प्राणवा पर मौजूद जोसेलिनो कोबिचिक ब्रिज है, जिसके मेहराब बहुत मशहूर हैं। हाँ बिल्कुल। आमतौर पर ऊपर जो मेहराब या आर्चेज होते हैं वो सीधे सड़क के ऊपर होते हैं ना, लेकिन इस पुल के 3 स्टील के देवयाहिल मेहराब सड़क को तिरछे यानी डायगोनल जाविये पर काटते हैं। मैं सोचता था कि ये शायद सिर्फ कोई फनकाराना अंदाज है, खूबसूरती के लिए। जी, आमतौर पर यही समझा जाता है। लेकिन ये तिरछे मेहराब पूरे पुल के वजन को सिर्फ अमूदी नहीं बल्कि एक पेचीदा 3D जाविये पर संभालते हैं, और दूर से देखने पर यूं लगता है जैसे कोई पत्थर पानी की सतह पर उछलता हुआ जा रहा हो। ये वाकई जमालियात और फिजिक्स का बेहतरीन मिलाप है। और जब कोई पुल अपने शहर के मंजरनामे के साथ इतनी खूबसूरती से घुल मिल जाए ना, तो वो शहर की आलमी पहचान बन जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का सिडनी हार्बर ब्रिज ले लें। ओह हाँ, न्यू ईयर की आतिशबाजी। बिल्कुल, जिसके देवा हेकल स्टील के मेहराबों पर नए साल की शानदार आतिशबाजी होती है, और वो तस्वीर पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया की पहचान बनती है। या फिर जुनूबी कोरिया का ग्वांग एंग दाई ग्यो ब्रिज, जिस पर नस्ब हजारों LED लाइट्स रात के वक्त समंदर की लहरों पर जो रंग बिखेरती हैं, वो बुसान शहर की तेज रफ्तार तरक्की और जदीदियत का चेहरा बन चुकी हैं। सही, लेकिन कभी-कभी ना पुल इतने जादुई अंदाज में कुदरत का हिस्सा बन जाते हैं कि वो किसी ख्याली दुनिया का मंजर लगते हैं। स्कॉटलैंड का ग्लेनफिनन वायडक्ट याद है? वो हैरी पॉटर वाली ट्रेन का पुल। बिल्कुल वही। 19वीं सदी का ये रेलवे पुल जो खालिस कंक्रीट और पत्थर से बना है, हरी भरी पहाड़ियों के दरमियान एक दायरे की शक्ल में यूं घूमता है कि जैसे वो हमेशा से उन पहाड़ों का ही हिस्सा था। जब उस पर से भाप उड़ाती हुई ट्रेन गुजरती है ना, तो वो मंजर सीधा किसी फिल्म की जादुई दुनिया का हिस्सा महसूस होता है। और अगर जादुई मनाजिर की ही बात हो रही है, तो जर्मनी के रैकुटेट्सब्रुक, जिसे शैतान का पुल भी कहा जाता है, उसको कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? रैकुटेट्सब्रुक, ये तो मेरा सबसे पसंदीदा पुल है। मशरकी जर्मनी के एक इंतहाई खामोश जंगल में बना 19वीं सदी का ये पत्थर का पुल कोई आम तामीर नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। ये बाकायदा एक सोची समझी ऑप्टिकल इल्यूजन यानी बसरी धोखा है। इसे इस जाविये पर तराशा गया है कि जब इसके नीचे बहने वाली झील का पानी बिल्कुल पुरसुकून होता है, तो पुल का आधा दायरा और पानी के अंदर बनने वाला उसका अक्स दोनों मिलकर एक बिल्कुल बेऐब और मुकम्मल दायरा बना देते हैं। परफेक्ट सर्कल। हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है कि 19वीं सदी में किसी ने एक सुनसान जंगल में इतनी मेहनत क्यों की? तो मुझे लगता है कि ये इंसान की उस फितरी ख्वाहिश का इजहार है कि वो सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहता, बल्कि वो अपने पीछे खूबसूरती के ऐसे निशानात छोड़ना चाहता है जो आने वाली नस्लों को हैरत में डाल दें। ये आपने एक इंतहाई अहम सवाल को जन्म दिया है। देखें, जब हम शहरों के बुनियादी ढांचे में सकाफती अलामात, फितरी हामांगी और इस तरह के हैरत अंगेज ऑप्टिकल इल्यूजन्स को शामिल करते हैं, तो दरअसल हम आने वाली नस्लों के लिए अपनी तहजीब की एक मजबूत विरासत छोड़ रहे होते हैं। विरासत? जी, हम उन्हें बता रहे होते हैं कि हमने दुनिया को किस नज़र से देखा, हमारी तरजीहात क्या की और हमने अपनी महारत का इस्तेमाल किन मकासद के लिए किया। ये पुल, पत्थर और लोहे में लिखी गई हमारी तारीख है। वाकई, कनाडा के समुद्रों में
बर्फ की चट्टानों को काटते मखरूती सुतूनों से लेकर फ्रांस की वादियों में हाइड्रोलिक रैम से धकेले गए बादलों से ऊंचे रास्तों तक, और फिर जर्मनी के खामोश जंगल की झील में बनने वाले उस मुकम्मल दायरे तक, ये सब हमें ये बताता है कि रुकावटें सिर्फ रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि वो इंसान को अपनी हदों से आगे बढ़ने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए इन बातों को समझना इसलिए भी अहम है कि अगली बार जब हम और आप किसी भी पुल से गुजरें तो ये याद रखें कि हमारे पहियों के नीचे महज लोहे और कंक्रीट की एक सड़क नहीं है। हम इस वक्त साइंस, फन, तारीख और इंसानी इर्तिका की अनगिनत सदियों पर मुहित उस जिद्दोजहद पर सफर कर रहे हैं जहां इंसान ने कभी हार मानने से इनकार कर दिया था। बहुत खूबसूरत बात कही। और इस बहस को समेटते हुए ना, अगर हम इसे मुस्तकबिल के वसी तर मंजरनामे से जोड़ें तो मेरे जहन में एक बिल्कुल नया सवाल उठता है। वो क्या? हमने तारीख में हमेशा पुलों को दो अलग जगहों, शहरों या बर्र-ए-आज़मों के दरमियान फासला कम करने का जरिया समझा है, लेकिन आज जिस तरह चीन का हांगकांग, जुहाई, मकाओ पुल 55 किलोमीटर तक 3 मुख्तलिफ शहरों को एक ही निज़ाम में परो देता है, उससे एक इंतहाई फिक्रअंगेज ख्याल पैदा होता है। किस तरह का ख्याल? जैसे जैसे हमारी इंजीनियरिंग मजीद ताकतवर और लामहदूद होती जा रही है, क्या हम एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ये देवाहिकल पुल सिर्फ रास्ते नहीं रहेंगे? मतलब जब एक पुल इतनी बड़ी और मुस्तहकम जगह घेर लेगा तो क्या ये मुमकिन नहीं कि इंसान उन्हीं पुलों के ऊपर अपनी रिहाइशगाहें, बाजार और मुकम्मल शहर बसा ले? क्या आने वाले वक्तों में पुल दूरियां मिटाने के बजाय खुद एक नई दुनिया, एक नया शहर बन जाएंगे? ओह, ये वाकई एक ऐसा ख्याल है जो जहन के कई दरवाजे खोल देता है। एक पुल जो बजाते खुद एक शहर हो, सोचने की बात है। अब ये वो सवाल है जिस पर सोचने का काम हम सुनने वालों पर छोड़ते हैं। आज के इस तफसीली जायजे में हमारे साथ इस दिलचस्प सफर का हिस्सा बनने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे।